जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 526th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today, what a great day. We had a lot of moves in the forex market, in the equity markets, also in Nifty BankNifty and crude. Above all, crude has shown a remarkable move, and because of that we are seeing some problem in the USD INR front. Okay, so we will discuss everything. Let us start today's session. सबसे पहले नमस्कार, good evening. ओके, एंड दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और दूसरी बात की एक छोटा सा अपडेट है दैट द ट्रेनिंग दैट वाज शेड्यूल्ड फॉर दिस वीकेंड has been postponed to next weekend. So instead of this Saturday and Sunday, we will have on next Saturday and Sunday, which is March 12th and 13th. So still there are few days left, and if anybody is interested, you can WhatsApp and you can register for this training. Okay, so what is happening as of now? We had the Russian and the Ukrainian delegates meeting a few hours back, and it was supposed to uh, bring some, uh, you know, yeah, it was supposed to, bring some diplomatic opportunities to reduce the war, to reduce the aggression, which can help both the parties. But as I've said, all these talks and all, they are not going to work, and the war is definitely going to continue. However, instead of focusing on the news flow, because that is almost kind of irrelevant as of now, whatever damage has to happen, that damage has happened, and that damage did not happen because of one day or one news. It started all the way in last 3 4 months, whereby the institutions, they were definitely distributing this equity market, and we had cautioned, we had explained why these markets will eventually tumble. And the first major crack happened in the month of January, then we got a good bounce, and then the final assault came in the month of February. So we are in the month of March, and the quarterly closing for 2022, first quarterly closing will happen in this month. So the quarterly candles, they will look absolutely crazy. Even if market rallies, the quarterly candles, they will look bullish. If they don't rally, then they will look very bearish. So the quarterly candle will be very important. Now, as I speak right now, European markets are trading negative. SGX Nifty is almost 100 points down, and US market is also flattish, slightly down move. US market may be here. S&P 500 has rallied from this bottom of 4200, 4100 right now, just oscillating around 4400. uh, German markets, they are again down by 2%. French markets, they are also down by 2%. Intraday some recovery was coming. German markets has made a new low. So German DAX has made a new low, and because of that, you can see some bearish move coming in the UK market as well. UK market is again almost going to test its own 233 EMA, and the French market. I think French markets were the best European markets before this Russian invasion started, but again, even that has broken. So similar, pattern is there. Head and shoulder distribution for past 3 4 months. If you can see over here from October, late October, distribution of past 3 4 months with a head and shoulder pattern, with some throwover, and then the real capitulation, real drop has started. So theme बहुत ही clear for है. ACWI again down है. Emerging market ETF is down by 1.5%. Now, what is interesting right now is that US dollar is rising. सो यूएस डॉलर जो है दोस्तों, इस समय वापस से एक इंट्राडे बढ़त लेता हुआ यूएस डॉलर इज मूविंग हायर. सो टुडे इज थर्सडे, tomorrow is Friday, everybody knows that, but on Thursday and Friday we are seeing some opposite moves in the forex market, where on Thursday, if the dollar rallies, if the dollar is bullish, then on Friday it is sold off. So I would be very interested to see if that patterns happen uh, tomorrow. Okay, because we are at a resistance on the US dollar, and we have already made two attempts. This was the first attempt, this was the second attempt.
on the news of Russian invasion of Ukraine. But we are still unable to create some big breakout on the higher side. Now today USD INR has closed above 76, and last week the high was almost 76, 76.10, 76.15, but it could not sustain, and thereafter it had dropped. But today USD INR has closed above 76, which is not good for the markets. But it will be very interesting to see if tomorrow we can manage to hold on to the gains. तो अगर कल यूएस डॉलर वापस से अगर ये नीचे टैंक करता है, वापस से अगर एक बेरिश मूव लेता है, देन आई थिंक मोर और लेस आई थिंक द इक्विटी मार्केट्स more or less would have made a temporary bottom for the short term. I suspect there is a great chance that market is most likely have made, or markets are almost close to a short-term bottom. Now, when I say short-term bottom, it doesn't mean that markets are going to produce any meaningful, rallies, etc. It will be just a technical up move, and then again, market should come down and finally bottom out somewhere by 10th of April or maybe second week of April. So US dollar bullish है right now. Euro USD has again dropped. Euro USD पे हम bearish हैं, and Euro USD has made a fresh new low. Now this is again very bearish. British pound again going down. British pound भी हम bearish हैं, and USD JPY is up, which means that JPY INR is bearish. Now very quickly currency front पे कुछ बातें बता देता हूँ. Number one, कल फ्राइडे है, एंड देन यू हैव अ वीकेंड. सो क्वांटिटी हमेशा, यानी क्वांटिटी जो है एकदम कम ट्रेड करना है. ठीक है. जो लोग भी रेगुलर ट्रेडर्स हैं या जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं फॉरेक्स मार्केट में विदाउट एनी एक्सपीरियंस, वी हैव अ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड वी हैव अ राइजिंग डॉलर एनवायरनमेंट with all the factors favoring a bullish US dollar. Okay. Now with crude oil spiking at a very हाई लेवल, आपको याद होगा दोस्तों $91 के ऊपर मेरा पहला जो टारगेट था वो था 112 का और $125 का, जो लगभग दोनों ही टारगेट मैं कहूंगा कि लगभग आज अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं. कल रात को भी मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल अभी भी काफी बुलिश है. ये ना सोचें कि जस्ट बैक टू बैक गेन्स आ चुके हैं तो इसे आप शॉर्ट करेंगे और आप बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है. मैं जानता हूँ बहुत सारे इंडिया के MCX ट्रेडर्स को जो मैसिव तरीके से MCX के गलत शॉर्ट ट्रेड में फंसे हैं. गोल्ड में लोग फंसे हैं, क्रूड में तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही फंसे, मेरे ख्याल से अब तक साफ हो चुके होंगे. जिंक में फंसे हैं, कॉपर में फंसे हैं. और आपको याद होना चाहिए कि MCX में सटीक एनालिसिस हमने हमेशा दी है. MCX में नेवर एवर, जब से मैं यूट्यूब सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी एक चाल आई होगी, कोई भी ऐसी मूव आई होगी जिसमें हम गलत हुए MCX में. So crude oil is a headache, and because of that, because of a rising crude oil, USD INR पे definitely pressure built हुआ है. Today RBI tried to control the USD INR, but I think RBI cannot apply all the firepower at once. So they keep on doing in bits and pieces. So last week they did, and last week USD INR corrected by 50 पैसे. So that time जो है RBI को एक RBI का काम इंटरवेंशन जो है काफ़ी हेल्प हुआ. But tomorrow it will be very interesting. Tomorrow, if crude oil goes down, suppose if crude oil witnesses some sort of profit booking, etc., or maybe with such a higher level, I'm sure somebody is going to put a break right now. So maybe they can announce some, supplies. They might increase the supply in the market just to curb the movement. Okay, the rate of acceleration is too much. The prices are okay, but the rate of acceleration is too much. Even they have their hedges, so उनके भी hedges अगर एक bandwidth के beyond में चले जाएंगे तो उनको भी loss होगा. So they always have this facility where they can curb the supply. They can expand the supply, thereby regulating the prices. So I think somewhere here, I think crude should take a breather for the time being. Okay, unless समथिंग डिजास्टर्स हैपन ऑन वीकेंड. अगर वीकेंड में मान लीजिए कुछ बड़ा अगर युद्ध हो गया, यानी रशिया ने अगर कुछ बड़ा एक हमला कर दिया, ठीक है, तो फिर ये चीजें वापस से स्पाइक अप करेंगी. इन नॉर्मल सिचुएशन ये चीजें थोड़ा सा अभी कंट्रोल में होनी चाहिए. सो क्वांटिटी करेंसी में जो है कम रखना है. दूसरी बात कि 50 पैसे का बफर आपको हर ट्रेड पे लेके चलना होगा टू फैक्टर इन दी वॉलेटिलिटी. सो इफ यू आर शॉर्टिंग एट 76, मान के चलिए कि इन्फ्लेट कर सकता है 76.5,
Why? Because of all these reasons. So any trade that you take, बाय डिफॉल्ट आपको 50 पैसे का बफर लेके चलना होगा. सो क्वांटिटी कम, 50 पैसे का बफर. ओके, बेवकूफ़ों जैसा एवरेजिंग नहीं करना है. क्वांटिटी कम का मतलब ये है कि आपको एवरेजिंग नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजिक थिंकर बन के जो आपको ट्रेड करना है. अगर आप वैसे करोगे तो इस पूरे साल आप फॉरेक्स मार्केट से बहुत ही ट्रिमेंडस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो. और इफ यू बिहेव लाइक अ फूल, देन गॉन इन वन सम बिग अप मूव और बिग डाउन मूव, you will lose all your gains. ठीक है. Now what about the ranges? So if I talk about say USD INR, then the range is pretty much intact. I think right now एकदम immediately मैं कहूँ तो 75.75 is the floor and 76.50 is the resistance. अब इस जोन में हमें प्ले करना है. अभी भी 76.5 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एक बैरियर का काम करेगा, बट यहाँ से एक ट्रिप यहाँ और यहाँ से एक ट्रिप यहाँ, ये दोनों लगना चाहिए. ओके, बिकॉज आई थिंक आरबीआई विल अगेन ट्राई टू डिफेंड, बिकॉज 76.5 विल बी slightly higher level, so they will defend. Okay, and if crude drops couple of dollars or maybe $5 etc, then थोड़ा सा ease off हो जाएगा. Okay, then you have the euro INR. so जो यूरो है, क्योंकि वो ऑलरेडी आज डाउन है, बट बिकॉज ऑफ बुलिश यूएसडी आईएनआर, ये इफेक्ट जो है कल हमें शायद नहीं मिलेगा देखने को. सो यूरो आईएनआर जो है दैट रेंज इज प्रीटी मच सेम. 80 सॉरी 85 मैं कहूँगा ऑन द लोअर साइड, 86 ऑन द हाई साइड. देन यू हैव जीबीपी आईएनआर, जिसमें कल जो है हम लॉन्ग करके गए थे, आज प्रॉफिट भी बुक किया, फिर शॉर्ट्स भी ऐड किए. सो जीबीपी आईएनआर इज अगेन दैट सेम रेंज. आई वुड से 100.5 is the base, and you have 102.25 as a resistance. So we played for the long side once, ये हो चुका है. Now we are playing for the short side once. And then you have the JPY INR, which is Japanese yen. So इसमें जो है हम शॉर्ट साइड में है ऑलरेडी. आज मॉर्निंग में ही इसमें 50 पैसे का प्रॉफिट मिल गया था. सो ओवरऑल आई वुड से दैट डाउन साइड में यू कैन कीप से 65 एंड अपसाइड में 66.50 इस तरीके से. फिलहाल ये मैं कल के एंगल से बता रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी क्लोज टुमारो एंड देन बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ वीकेंड, नेक्स्ट वीक के लिए हम फ्रेश असेसमेंट करेंगे, फ्रेश रेंज वगैरह बताएंगे. ओके, ओवरऑल अगर कल के दिन सारे पेयर्स एक्सट्रीम तरीके से ऊपर में रैली करते हैं तो सारे पोजिशंस को कट करके ही जाना समझदारी का काम होगा. मंडे से जो है इसे फ्रेश अप देखेंगे. ठीक है, सो दैट्स द अपडेट ऑन द फॉरेक्स फ्रंट. फॉरेक्स पे थोड़ा ज़्यादा मैं स्पेंड इसलिए टाइम करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं फॉरेक्स ट्रेड अप करने लगे हैं. ऑल राइट, सो व्हाट्स नेक्स्ट. चलिए बात करते हैं कमोडिटीज में. तो कमोडिटीज में क्या हो रहा है? कॉपर इज ऑलमोस्ट आई थिंक मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई, और इट हैज मेड, या सो इट हैज फाइनली मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई. बैक टू बैक मूव्स हैं मेटल्स में, मेटल स्पेस में अभी काफ़ी अप मूव बाकी है. कॉपर जो है जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कॉपर 880 भी कर सकता है अगर ये न्यूज़ वगैरह जो है रुकी नहीं. सो आई थिंक कॉपर कैन डू वेरी इजली 880. सो इफ यू आर शॉर्टिंग कॉपर, you know, I think that will be a very foolish thing to do. Learn your lessons from crude oil, from natural gas, from gold and all these things. निकल आप देखिए कितना ऊपर चढ़ चुका है. एल्यूमिनियम देखिए 301, जिंक 330, मैसिव. चलिए कमोडिटीज में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्शनेबल ट्रेड वगैरह अभी कुछ है नहीं. सो एक बार हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन. सो बिटकॉइन इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स, एंड अगेन इट हैज़ रिएक्टेड फ्रॉम द 200-day मूविंग एवरेज. सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे बिटकॉइन 46 से लेके 36 या 37 के रेंज में रहेगा, राइट, एंड दैट सेम थिंग इज वर्किंग राइट नाउ. सो अभी क्रिप्टो फ्रंट में मैं कोई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अभी नहीं करना चाहता. इसकी काफ़ी सारे फंडामेंटल रीजंस हैं. probably in the weekend session I will like to explain why I'm not looking at any strategic trade in the crypto markets. It just support resistance play, which itself is quite big. Now what is a strategic trade? Strategic trade दोस्तों वो होता है जो एक हार्डकोर टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से होता है. When I say fundamental, strategic trade देखिए क्या था. strategic trade क्रूड ऑयल में ये लॉन्ग करना था. Despite such a big drop, we went against the flow. We went with the larger flow and we got rewarded. So ये होता है strategic trade. Okay, जो
टाइड का जो फ्लो है किस डायरेक्शन में है, किस इंटेंसिटी का है, कितना इजीली हो सकता है. ओके, इफ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द गेम तो आप गलतियां भी करोगे तो भी वो माफ हो जाता है. एंड इफ यू आर अगेंस्ट द ट्रेंड या अगेंस्ट द फ्लो ऑफ मनी, देन व्हाट विल हैपन इज इवन इफ यू डू योर बेस्ट, यू विल बी पनिश्ड. सो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ये होता है. टेक्निकल ट्रेड क्या होता है? टेक्निकल ट्रेड इज सिंपली प्लेइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस इन अ रेंज एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. सो इसलिए क्रिप्टो पे अभी कोई स्ट्रेटेजिक ट्रेड नहीं है. स्ट्रेटेजिक ट्रेड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसका कोई थीम डिसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि द लार्जर प्लेयर्स इवन दे आर क्लूलेस as to what should happen to the crypto market given the current scenarios. Now, what are the current scenarios? You have a scenario where the geopolitical crisis is going to only escalate with uh, time. Okay, then you have a scenario where the rates are almost 100%, they are going to be raised. So the easy monetary supply which started somewhere from here, okay, is coming to an end. So all these situations, all these factors, I think the larger players, they are still trying to assess as to what should happen. One thing is very clear, that you have a very good base in the BTC market at 30,000. I don't see 30,000 being broken anytime soon. And I think you have a good top here. So probably uh, अगर कोई strategic theme set नहीं होता है, then probably what will happen is you will trade again with this same cycle. ठीक है, 30,000 पे bottom, 65,000 पे top, again here, again one more move like this, till some themes are set. So these swings in the BTC, they look very very similar in price and time. So I think that same thing can happen over here if there is no strategic theme. चलिए बात करते हैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी पे कि वहां पे क्या हो रहा है. सो टुडे वाज अ ग्रेट डे. व्हाई ग्रेट डे? बिकॉज कल जो है हम लॉन्ग करके गए थे बैंक निफ्टी, एंड मॉर्निंग इटसेल्फ जो है बुकिंग का बहुत अच्छा मौका मिला, और बुकिंग करते ही बैंक निफ्टी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया. नाउ व्हाट्स द रोड मैप अहेड? सी, कुछ बातें बहुत ही दिलचस्प है, कुछ बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कॉन्टेक्स्ट को समझना इस समय ज्यादा जरूरी है रादर देन focusing on any particular trend, because as I said yesterday, right now, and especially for this 2022, I'm not a trend trader. uh, I am a technical trader. So technical trader, और या कहूँ तो context trader. So context क्या है? देखिए, let us think from a weekly perspective. Why? Because tomorrow is Friday. So कल जो है वीकली पर्सपेक्टिव होगा, कल डेली पर्सपेक्टिव नहीं होगा. ये आपके सामने सिंपल सा एक प्राइस एक्शन चार्ट है निफ्टी स्पॉट का, weekly time frame. Now, if you look closely, what is the one identical thing, or what is the one thing that looks very identical to you? It is this. Okay, it is this. So, what I foresee for this market is exactly a repeat of this wave over here in price and time, which essentially means that we are going to have a kind of, you can say, ABCD sort of a pattern on a weekly frame, which means 15,800 is going to be a floor for this market, and that 10th April cycle that perfectly fits with the price and time thing. Now, this correction percentage wise and this correction till now is exactly the same. It is 11.8% price wise. Time wise, we are still lagging 3 weeks. And if you add 3 weeks or 4 weeks, probably the fourth week will come somewhere near my time cycle. Okay. Now, just before that time cycle, because we have completed one price symmetry of this entire correction, there is a good chance that we have one time cycle of 10th of March, and we have the UP election verdict also coming uh, on 10th of March. So because we have completed this price symmetry over here, and we have one good time cycle and event coming ahead of us. So what can happen is, I feel market should bottom out price and time here for the short term and scale some rally. Okay, not a very huge rally, but maybe 17,200, 300 sort of rally, and again drop here to complete the final price and time bottom, and then we will see what happens. Okay, so इस चीज को अगर हम
प्राइस टाइम और ये सब चीजें हटा दें, सिंपल एक लेमैन टर्म्स में कैंडल स्टिक के तरीके से अगर सोचें, तो जिन्होंने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है और आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी इस चार्ट को देख के कि what is the most relevant thing in this entire chart. That is this candle. This stands out. Why it stands out? Because it is the largest candle. So if this is the largest candle, it is what? Wide range bar. What happens in a wide range bar? You go at the bottom once, then you reverse, you go at the top once, and then you reverse. So basically you oscillate within this big candle with the possibility of just flushing the कैंडल हाई और एंड कैंडल लो. ओके, सो जिसको ये बात समझ में आ गई होगी, जैसे यहाँ पे था, दिस वाज अगेन not an average size bar but a large bar. So what happened? Market first went on the lower side, it flushed, and then again it tried to go towards the higher side. Okay, now similar thing I'm expecting to happen here for the next 3 weeks or 4 weeks, unless something very disastrous happens. Obviously, ये बात सबको समझ में आ रही होगी. So on the downside, I think we have made a credible bottom. 16,200 is fine. एंड गोइंग फॉरवर्ड, जो कल जैसे मैंने जो रेंज आपको दिया था कि मुझे नहीं लगता मार्केट 16,400 के नीचे सस्टेन करेगा और 17,200 के ऊपर सस्टेन करेगा. गिव और टेक 150 पॉइंट्स इंट्राडे फ्लक्चुएट हो सकता है. आई बिलीव यही रेंज रहने वाला है आने वाले काफी दिनों के लिए. और राइट नाउ वी शुड गो समथिंग लाइक दिस, वी शुड गो ऑन दी हायर साइड. ठीक है, सो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये अपडेटेड रेंज है, प्राइस टाइम सारी चीजें बता चुका हूं. अब देखते हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि आज के प्राइस एक्शन में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं. दोस्तों, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जस्ट शो मी थम्स अप और समथिंग, बिकॉज आई थिंक अगर आज आपको आवाज क्लियर आ रही है तो जस्ट शो मी थम्स अप. ओके, नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग about today's candle? See, we had a very nice yesterday inside bar, and today I had expected that market should open gap up, probably fill the gap, or probably go till yesterday's low, and eventually it should move on the higher side. So what happened? Market खुला ही ऊपर और नीचे भी आना शुरू हुआ. that was also fine. मार्केट प्रीवियस डे बॉटम के पास भी आया, दैट वाज आल्सो फाइन, बट तब तक समय खत्म हो चुका था. ठीक है, सो पूरा दिन जो है मार्केट ऊपर खुल के नीचे की तरफ जाने लगा, एंड टिल द एंड इट went on the lower side, and in last couple of minutes something happened. सो टाइम नहीं मिला मार्केट को नीचे से ऊपर रिवर्स करने के लिए. सेम चीज बैंक निफ्टी पे हुआ. नाउ इफ यू कंबाइन again, if you combine this candle, if you combine this candle, what is left, what leaves behind is nothing but an inside bar. ठीक है, very very simple. So if there is an inside bar, and if you are a long trader, after today's move your sentiments are dry. ठीक है, you are not feeling that confident. So what should happen is market, if it saves this 16,400 375, this, okay, I'm talking about this candle now. If market saves this, then I'm pretty sure that you will have a sharp up move towards the higher side, towards this. Now this move that I'm talking about, from say 16 to 16,300 to 17,200 sort of move, I think this move will commence from tomorrow. ओके, सो कल के दिन हो सकता है ये एक और बार नीचे जाए, मे बी समथिंग लाइक दैट कैन हैपन, और मे बी कल से ही ये ऊपर चलना शुरू हो जाए. वी हैव कंप्लीटेड अ वीकली एक्सपायरी आल्सो. ओके, सो ये अब थीम है आने वाले 5 दिनों में. तो इसको आप कैसे प्ले करोगे, ये आपको थोड़ा जो है आपको स्ट्रक्चर करना होगा. ओवरऑल मोस्ट लाइकली जो होने वाला है मार्केट में, एज पर माय स्मॉल knowledge, I have explained what is most likely to happen and how that is going to unfold. So rest, it is up to you how you are going to figure out your plan of action. Are you going to play through stock? Are you going to play through leading stock? या कैसे आप करोगे? ठीक है. Now let us talk about mob level for tomorrow session. So बहुत ही सिंपल है कल के दिन. ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कल की प्रोफाइल देखें, if we look at the yesterday's profile of Nifty futures, yesterday there was a very good profile. I like this profile because generally इस टाइप की जो प्रोफाइल होती है, ठीक है, ये अगले दिन गैप अप ही प्रोड्यूस करेगा, जो कि आज हुआ.
but this type of profile doesn't fade away like this. ठीक है. Now आज जो हुआ है, this tells me that yesterday's buyers probably they are still holding their longs. ठीक है. Now see, this is not your typical market profile, this is my market profile. So uh, आजकल क्या सबको थोड़ा थोड़ा हाफ नॉलेज होता है, तो पीपल स्टार्ट टू कंपेयर. ओके, लेट मी. Okay, yeah. So what happened is people have bought Nifty futures yesterday, okay, and they are still holding it. At least I can tell you that the people, the big ticket guys, they are still holding. They have not given up. Probably they must have booked some of them, but they are still holding up. Okay. Now, what is interesting is you have a large range. You have a large range today, okay, with two distribution points like this, okay, but there is no big ticket volume. There is no big ticket volume. Okay, there is no spike in volume, which means that it is uh, it is mostly due to the weekly expiry thing, or probably few operators in the options market, they were trapped in some of their positions, and the only way to exit from such position was to create a drop in the market. So that could be any type of position that is immaterial, but this clearly looks like as if yesterday few big ticket size guys on the short side or on the put side, they were uh, trapped. So basically आज का मूव इसके लिए ही हुआ है. Having said that, this is a clear case of a fresh selling. Okay, आज के दिन fresh selling का केस है with a very low volume selling. यानी आज जो है, या तो एक फ्रेश सेलिंग की शुरुआत हुई है जो कि बहुत ज्यादा कोई कमिटेड इन नेचर नहीं है, या फिर आज जो है ना लेट सेलिंग हुआ है. यानी पीपल हु कुड नॉट शॉर्ट दिस मार्केट, प्रॉब्ली दे आर नाउ ट्राइंग टू शॉर्ट दिस मार्केट. अब ये बहुत मजेदार एक रेसिपी है. रेसिपी इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज टुमारो इफ वी कैन ओपन और वी कैन probably just scale above 16,650, then given the context of this day and today, given the context and all these things, above your 1650, 16,650 in all these levels, there can be a very strong short covering rally, and probably that could coincide with some news coming on the Russian and Ukrainian war front or something like that. ठीक है. तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ. प्रॉब्ली जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए एडवांटेजेस हो जाएगा, उनके लिए ये सब इंफॉर्मेशन काफी मायने रखती है. एक और सबसे दिलचस्प बात आज के सेशन में ये था कि अगर जो डेली हम निफ्टी फ्यूचर्स का वॉल्यूम देखें, सो इट इज ऑलमोस्ट lowest of last 4 to 5 session. Okay, so very nice drop on a very low volume with such market profile, with such context, tells me that two things are most likely to happen. Either this is a fake selling, okay, or few guys who missed the entire bear trend, they have started to short sell this market. Okay, so in both the cases, it's a very good recipe for bulls. Now it is up to bulls. They just need to tease the late bears, and they have a good 5 to 700 upside waiting for them. ठीक है. तो यहाँ पे अब बुल्स को कैपिटलाइज करना है. अगर बुल्स उसको भी कैपिटलाइज नहीं करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से बुल्स को जो है धंधा छोड़ के चले जाना चाहिए. ओके, लेट अस सी बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है? बैंक निफ्टी भी काफी दिलचस्प है आज के दिन. सी, सबसे पहले दो बातें करेंगे. बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग बेसिस पे नए लो पे क्लोजिंग दी है, जो कि काफी सैड बात है. Okay, so Bank Nifty weekly candle is not looking good as of now. So tomorrow if this candle stays like this, then definitely मैं किसी भी तरीके का लॉन्ग ट्रेड वीकेंड में कैरी करना एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज लुक एट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट. ये किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट है? ये एक डिजास्टर इन द मेकिंग कॉन्टेक्स्ट है. यहाँ पे है आपका एक लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द राइट शोल्डर हेड, एंड दिस इज द राइट शोल्डर, and you are barely sitting on the last point of support.
आप आखिरी सपोर्ट पे हैं. ओके, नाउ if luck favors, आप लॉन्ग करके जाते हो, and given the political and geopolitical conditions and all, if nothing bad happens, then probably you have a good place, good level, and you might get a good profit. But अगर गलती से भी कुछ बड़ा हो गया, something, then what can happen is bears can टेक यू फॉर अ गुड राइड. ठीक है. सो इसीलिए एक गिरते हुए मार्केट में जब बाजार एकदम एक सपोर्ट पे होता है और कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा बेरिश है, तो कभी भी चांस लेके नहीं जाना चाहिए इस मार्केट में. ठीक है. क्योंकि अब ऐसा आप करोगे तो जब करेक्शन या बड़े जब क्रैश होते हैं, जैसे कोरोना क्रैश हो गया, 2008 हो गया, 2015 हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ऐसे टाइम पे आपकी बैंड बच जाएगी पूरी तरीके से. ठीक है. बिकॉज द बेयर्स कार्टल, द बेयर्स आर मोर एडवांस देन बुल्स एनी डे. ठीक है. जो मंदी का खिलाड़ी होता है वही असली खिलाड़ी होता है, बुल्स को कभी भी खिलाड़ी नहीं माना जाता. ठीक है. सो दे नो दिस थिंग वेरी वेल, that baby bulls, they always love to buy at supports without any validation of the price. So उनको पता है कि सब यहाँ पे लॉन्ग करके जाएंगे, बिकॉज कोई एक टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगा. ठीक है. और वो उसी चीज का फायदा उठाएंगे, आपको गैप डाउन कराएंगे पहले, और फिर आप उसको एवरेज करोगे, और उसी गैप डाउन से ये पंप करते हुए नीचे चल जाएंगे. ओके. सो अगर कल नीचे में क्लोज होता है बैंक निफ्टी, तो कैरी नहीं करना है. तभी भी एक बुलिशनेस मेंटेन होगा, मंडे को फ्रेश देख लेंगे, बट कैरी नहीं करना है. ये बात समझाने के लिए ये चार्ट मैंने आपको दिखाया है. ओके. अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कहां तक एक लॉजिकल गिरावट हो सकती है. तो जैसे कल मैंने कहा था कि 34,000 तक ये गिर सकता है, बट उसके ऑड्स भी मुझे काफी कम लगते हैं. आई थिंक ये बहुत ही शानदार लेवल्स हैं. 34, 800 एंड 700, आई थिंक दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल्स, एंड दे डेफिनेटली कॉल फॉर वन मूव टुवर्ड्स 36,800, जहां से ये लास्ट टाइम यहाँ पे ड्रॉप हुआ था. सो आई थिंक इट इज justified to expect one trip here, okay, to retest the last breakdown level, and probably then uh, break the foundation of 34,000, if at all market is bearish, if at all market is like bigger bearish. Okay. सो आई थिंक ये ठीक जगह है. अब आज की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी. कल हम बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बॉटम पे बाय किए थे, और आज एकदम एग्जैक्ट टॉप पे आज हमने बेचा. तो और उसके बाद इंट्राडे वापस हमने लॉन्ग की ट्राई की थी, बट कुछ हो नहीं रहा था, एंड देन टाइम वाज ऑलमोस्ट ओवर, सो इसको हमने जो एग्जिट कर दिया. सो बैंक निफ्टी में अब कल का प्लान जो है ये काफी क्लियर है. और अगर हम बैंक निफ्टी की प्रोफाइल अगर देखें एक बार, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज it's very crucial to understand what has happened. Now one good thing has happened in bank nifty, और कल एक बात को लेके थोड़ा सा मैं चिंतित था. वो ये था कि I was not very much happy with this bottom. Okay. Now I was happy for nifty, but not for bank nifty for this sort of a bottom. Reason being, whenever you have a good bottom in the making, you will see a very nice curve over here. Okay. The angle and the length will be quite decent, which was missing here. ठीक है. मैं जिस टाइप की दोस्तों एनालिसिस और जिस टाइप की टेक्निकल नो हाउ आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही क्रिटिकल है. दीज आर ऑल द नुआंसेस ऑफ every sort of technical analysis which you will rarely find in the Indian so-called YouTube community. Just to reiterate my point, what I highlighted here, if you compare both these profiles, okay, look at this bank nifty one, yesterday's bank nifty one, okay, and then compare with this one, yesterday's nifty one, you can clearly see what I'm trying to highlight. ओके. सो 100 बात की एक बात कि अब कल क्या करना है, सीधे इस पे आते हैं. एजुकेशन को खत्म करते हैं. एजुकेशन वगैरह जो है आपके लिए ये ट्रेनिंग स्केड्यूल्ड है, एंड यू कैन रजिस्टर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, नॉट मार्केट प्रोफाइल बट the price action part we will do over there. Okay, so what is the good thing that happened today is this missing part got completed here, and as soon as that got completed, you got a big volume pump, very strong big volume pump. Now generally expiry days के दिन जो है 3-10 3-15 के बाद मैं कुछ काम नहीं करता. I'm not that kind of a person who will gamble with zero hero and all this. I'm past from those things. So
you see here that spike came. So yesterday's problem has got repaired today. Now tomorrow is a crucial day. Why? Because having repaired yesterday's problem, tomorrow if we can start the day in a good manner, or if even if we are starting on the downside, but if we can somehow defend and start to rise, then I think there is a very great opportunity on the higher side for some short term gains. तो क्या लेवल्स होंगे, किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड किया जाएगा? बहुत ही सिंपल है। कल का जो मॉब लेवल होगा बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए, मैं समझता हूँ बहुत ही क्लियर है, एंड इट इज नथिंग बट योर 34,950, और एक अप्रोक्सीमेट कहें तो हम राउंड फिगर ले लेते हैं 35,000। ओके, सो अबाउट 35,000 वी आर बुलिश। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 35,500, which is very close to this candle, and second हो जाएगा 35,850, which is somewhere here. Okay, so I am waiting to see bank nifty coming here to complete this test of 1 2 3 and then again a correction. ठीक है, सो ये ऊपर में है, नीचे की तरफ मैं समझता हूँ 34,600 इज द मैक्सिमम। ठीक है, सो दैट्स ऑल ऑन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो सेशन। निफ्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, और निफ्टी में अगर मॉब लेवल के हिसाब से मैं बताऊं तो भी आई थिंक ठीक है, एनी लेवल यू कैन कंसीडर, कॉन्टेक्स्ट ज्यादा जरूरी है। चलिए, लेट अस टॉक सम स्टॉक्स, वी कैन डिस्कस some stocks if there are stock queries. Okay, I think there are no stock queries, so we can wind up the session. चैनल को दोस्तों आप शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। Okay, somebody was asking what will be the effect of LIC IPO cancelled। अच्छी बात है, मैंने पहले ही कहा था LIC IPO नहीं आएगा। ऐसे IPOs जो है वो जनरली मल्टीपल राउंड्स में आते हैं, दे डोंट कम इन जस्ट वन राउंड। यानी मतलब अभी छोड़ो, अभी टाइम नहीं है। आप समझो कि ऐसे आईपीओ जो है उतनी आसानी से नहीं आते, ये पर्दे के पीछे बहुत अलग गेम होता है। अल्ट्रा टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट इज द फर्स्ट क्वेरी। सो अल्ट्राटेक सीमेंट पूरी तरीके से जो है चकनाचूर हो चुका है, बेरिश काउंटर है, इसने जो है 7,000 का जो लेवल ब्रीच किया है, एज यू कैन सी हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन, 200 डीए में गॉन। सो ये तो उसी दिन से बेरिश है, बेरिश काउंटर है। कैम्स, CAMS, कैम्स, ओके। सी कैम्स थोड़ा टेक्निकल बाउंस बैक कर सकता है 2700, स्टॉक बेरिश है, क्लियर कट बेरिश है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो सम पुल बैक कैन हैपन टू रीटेस्ट दिस मूविंग एवरेजेस, नथिंग एल्स, वहां पे निकल जाना चाहिए आपको। ये सब स्टॉक, ये सब स्टॉक जो है ना, आपको यहीं कहीं निकल जाना चाहिए था, या प्रॉब्ली अगर आप ट्रेल कर रहे थे तो समवेयर हियर, because this is how these stocks are pumped and then dumped. Look at this, pump dump, ये पहला निशानी है। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी लोग मेरी ट्रेनिंग या जो ग्रुप में हैं, जो सीख रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जो मेरी बातों को नोट करते हैं, टेल मी वन गुड थिंग दैट आई हैव टॉट यू, और टेल मी वन legacy of technical analysis that probably I have delivered to you guys. It should be this wide range bar। ठीक है, पूरा यूट्यूब जानता है कि जब भी ये वाइड रेंज बार है ऑन अ बिग वॉल्यूम, आपको क्या करना है, और आपको एग्जैक्टली निकल जाना है। सो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, बेसिक सीख लो। HDFC, HDFC बैंक या HDFC, ठीक है, देखिए HDFC तो बॉस बेरिश काउंटर है, आखिरी सपोर्ट पे है। ठीक है, कोई ट्रेड ही नहीं है यार इन सबों में। ये आखिरी लेवल है 2200 का। ठीक है, इसके नीचे ये सीधे फिर और 100 पॉइंट गिर जाएगा। दिस स्टॉक इज बेरिश। ओके,
Tata Steel is the next query. टाटा स्टील कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों ये सीधा न्यू हाई जाएगा, ठीक है। सो ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेड चाहते हो तो टेक्निकल ट्रेड में इट्स वेरी सिंपल, यू हैव expanding wedge resistance over here, okay, so maybe it can you know fall till 1240 ओवरऑल। जब ऐसा एक्सप्लोसिव शुरुआत होता है, थीमेटिक बेस्ड जब शुरुआत होती है, थीम बेस्ड का क्या मतलब है, वॉर है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, सप्लाई कंस्ट्रेंट हो सकती है, डिमांड बढ़ेगा, वॉर के बाद डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कंस्ट्रेंट और राइज इन डिमांड, then you have the metals as a whole sector rising, so and plus you have a technical bullish chart, so ये thematic based सेटअप है। तो यहाँ पे आपको माइक्रो ट्रेंड नहीं देखना है, आपको मैक्रो ट्रेंड देखना है, सो दैट इज क्लियरली ऑन दी हायर साइड। रेमन रेमन लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड एज ऑफ नाउ इज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड, ओके। आप अगर प्रॉफिट में है तो निकल जाइए, ट्रेल करना है तो 640 आखिरी स्टॉप लॉस होना चाहिए। नाउ जिन लोगों को मैंने ट्रेलिंग या एग्जिट या कुछ कहा था पिछले 1-2 महीने के दौरान, आज आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि उस बात की क्या इंपॉर्टेंस थी। भारतीय एयरटेल जो है स्टॉक देखिए, ये बस गिरने के लिए रेडी है, अपसाइड अगर गया तो मे बी 700, ओके, बट क्लियर कट डिक्लाइन है, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर तैयार बैठा है, एक असॉल्ट बेयर्स ने कर दिया है, कम वॉल्यूम पे ये असॉल्ट था, इसका मतलब है कि ये ठीक से टेस्ट नहीं हुआ है, 700 गया तो भी सेलिंग आएगी, 640 जाना निश्चित है। नेक्स्ट स्टॉक है एम ए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मान एल्यूमिनियम है। सो एल्यूमिनियम आपको याद होगा कि आई वाज वेरी बुलिश ऑन एल्यूमिनियम, एमसीएक्स एल्यूमिनियम पे जो है लॉन्ग कॉल भी दिया था, हिंडाल्को मैंने कहा भी था कि ये सबसे बढ़िया मेटल स्टॉक है क्योंकि थीमेटिक बेस्ड हमें सेटअप मिल गया था। सो आई एक्सप्लेन कि जब भी इसी, देखिए जो मैं अभी बिटकॉइन के बारे में बता रहा था ना, स्ट्रेटेजिक ट्रेड क्या होता है, ये होता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड जब टेक्निकल्स के साथ साथ आपका फंडामेंटल का ये मतलब नहीं होता बैलेंस शीट, फंडामेंटल जो है हो सकता है नॉन फाइनेंशियल फंडामेंटल भी हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल यानी कि कोई मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट से नहीं है, बट लाइक इट कैन बी ड्यू टू सम other factors in the entire value chain of that company and that sector. So ये स्टॉक देखिए बुलिश है, थीम बुलिश है, आपको आई थिंक यू शुड टेक अ चांस, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाओ, ऑल टाइम हाई के लिए वेट करो, रेस्ट इट इज अप टू यू, आप कहीं भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं, आप ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक दिस डिजर्व्स न्यू ऑल टाइम हाई, ओके। लार्सन एंड टूब्रो फॉर लॉन्ग टर्म, सी लॉन्ग टर्म का जमाना खत्म हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म या तो 1 महीने बाद आएगा या तो 5 महीने पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कोई टाइम नहीं है, आई थिंक दैट वाज मार्च 2020 वाज द ओनली टाइम, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस मार्केट्स, निफ्टी कैन गो मैक्सिमम टू 19,600, बट इवन दोज रैलीज विल बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल बात समझो, शेयर मार्केट में खिलाड़ी बनने आए हो ना, तो एक सिंपल सी बात समझो आप, ठीक है। ये मार्केट चलता है पैसे के ऊपर, किसके ऊपर चलता है, पैसे के ऊपर, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा बाजार में कब आया है, इन द लास्ट, सबसे ज्यादा पैसा कब आया है, सबसे ज्यादा पैसा आया बाजार में अप्रैल मार्च 2020 से लेके, ठीक है, सितंबर 2021, और रिटेल ने सबसे ज्यादा पैसा कब डाला मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक, यानी फेब 2022, ठीक है। यहाँ पे रिटेल सबसे ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया है, और वहीं से कोई भी दुनिया का चार्ट उठा के देख लो, आपको वहीं से इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया है। अब इन्होंने रिटेल को फंसा दिया है वर्ल्ड वाइड, ओके। इन शॉर्ट साइकिल को समझो, ये साइकिल लॉन्ग टर्म का खत्म हो चुका है, ठीक है। ये टेक्निकल मूव्स होंगे, तो इवन इफ एनीथिंग
जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, 1700 से 2200 2300 हो सकता है. दीज आर ऑल टेक्निकल ट्रेड्स दैट आर गोइंग टू हैपन. ओके, सो एलएनटी में अभी देखिए, एलएनटी इज गुड, बट अभी वेट करेंगे. ठीक है, एलएनटी का जो लॉन्ग टर्म में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इट इज स्टिल गुड. 1730 वाज अ गुड लेवल, स्टिल ओके, ठीक है. प्रॉब्ली इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर है, अभी हेड है, तो राइट एक बन सकता है. सो मार्केट्स स्टेबलाइज कर देंगे 16,200 वगैरह पे, तो अपने को यहाँ पे ट्रेड मिलेगा. एलएनटी, लेट मी टेल यू कि वीकेंड में एक बार वापस रिव्यू लेना, क्योंकि डिपेंड ऑन हाउ द वीकली कैंडल फॉर्म्स फॉर नेक्स्ट वीक, आई कैन गिव यू अ ट्रेड. Okay, so even if institutions want to distribute, we can have one technical rally till 2000 sort of like. So ये अच्छी जगह है, बट आई थिंक थोड़ा सा एक बार वेट करेंगे. जब तक डेली पे रिवर्सल कैंडल वगैरह नहीं बने, तब तक हमें कमिटेड नहीं होना है. ठीक है, तब तक आपको सिर्फ स्वाइप करना है राइट और लेफ्ट, कमिटेड नहीं होना है. ठीक है. बजाज फाइनेंस पे एक क्वेरी है, बजाज फाइनेंस. और दोस्तों आई थिंक देर आर टन्स ऑफ मैसेजेस, सो आप सुपर चैट कर सकते हो अगर आपका कोई हाईलाइट करना है किसी मैसेज. सी बजाज फाइनेंस अगेन सेम थिंग है, बंदा सपोर्ट पे है बट कुछ उठा नहीं पा रहा है. ठीक है, सो बहुत देर तक कोई चीज आप जब होल्ड करके रखते हो तो आपके हाथों में भी दर्द होता है. तो इसी तरीके से इन्वेस्टर्स कितना होल्ड करेगा. ठीक है, शॉर्ट टर्म टेक्निकल इन्वेस्टर जो होता है उसको कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी तो देखना है. ओके, सो अगर आप ज्यादा टाइम साइडवेज जाओगे तो वो अपना पैसा इतना होल्ड थोड़ी कराएगा. ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यही है कि अगर आपने कैश में इन्वेस्ट किया है तो ठीक है. अगर आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हो तो गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मार्केट में इस टाइप का स्टॉक एफएनओ ट्रेडिंग वेरी रिस्की, वेरी 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 रिस्की if you don't have your plan. Now, as far as this stock is concerned, I think stock can dip towards 6600 for once, but I think it's a good zone. Okay, so more or less what should happen is, given we have this structure, we can dip till 65 66, but I think it should take support and again bounce till 7100. Okay, so is चैनल में मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ. नीचे 6600 अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 7100 अच्छा रेजिस्टेंस है. इससे ज़्यादा इसमें ना तो मैं उम्मीद करना चाहता हूँ, ना इसकी मैं कल्पना करना चाहता हूँ, और यही एक सत्य है. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कब होगा पता है, ये इंटरेस्टिंग होगा 7200 के ऊपर, 7200 के ऊपर. ठीक है, तो 7200 के ऊपर ये जब चलना शुरू करेगा तो फिर ये दिलचस्प हो जाएगा. इन दैट केस फिर हम वापस 7000 की कोई भी डिप पे इसे बाय करेंगे फॉर न्यू ऑल टाइम हाई एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, जो भी मैं इन चार्ट्स पे ड्रॉ करता हूं, अगर आप उसका फोटो लेके रखेंगे तो आई थिंक आपको फायदा होगा. चलिए कुछ और स्टॉक ले लेते हैं. सिप्ला, सिप्ला लेते हैं. स्टूडेंट की क्वेरी है, गुड लोकेशन टू एंटर फॉर 970. ठीक है, देखो दो चीजें. अब देखो ब्रिटानिया का चार्ट, सिप्ला का चार्ट, दोनों में क्या कॉमन ग्राउंड है. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट. इफ यू सी ब्रिटानिया, जिनके पास भी ट्रेडिंग व्यू है, यू कैन ओपन योर सॉफ्टवेयर साइड बाय साइड और आप ऐसे सीख भी सकते हो. इफ यू ओपन ब्रिटानिया चार्ट एंड इफ यू सी सिप्ला, व्हाट इज हैपनिंग इज similar activity. So whenever you have a large range like this, ऐसे चार्ट्स पे हमेशा एक ही चीज करना चाहिए कि जो डिफाइंड टेरिटरी है, एंड प्रिफरेबली दैट दैट शुड हैपन अबव प्रीवियस हाइस. यानी ये प्रीवियस हाइस थे, इसके ऊपर ये न्यू हाई ग्राउंड को बना रहा है. ठीक है, इट इज ट्राइंग टू ऑक्शन इटसेल्फ, इट इज ट्राइंग टू गेट एक्सेप्टेड इन द मार्केट एट दीज हायर लेवल्स. तो ऐसे सिचुएशन में आंख बंद करके जब भी ये लोअर रेंज पे आता है तो कैश में 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जितने भी आपको इसमें पैसे डालने हैं, ओके, यू कैन डिप्लॉय दैट मनी. सो दीज आर द बेस्ट एंट्री पॉइंट्स. दे विल नॉट कम ऑफन, वंस इन वन क्वार्टर एक मौका आपको मिलेगा. बट इफ यू कैलकुलेट, इफ यू कीप 10 सच चार्ट्स रेडी, तो आप बिना लेवरेज के, बिना कोई रिस्क के आप एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते हो. आपको रोज बैठने की भी जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, टेक्निकल अगर ट्रेड करना है, जो कि अभी जो क्वेरी है, सो आई थिंक ठीक है, दैट विल वर्क, दैट विल वर्क. एंड द ओनली थिंग इज कीप योर स्टॉप लॉस एट 900.
uh, I can see rising wedge structure being taken out. Okay, so generally ये काफी स्पाइक जनरेट करता है, सस्टेन नहीं करता है, स्पाइक जनरेट करता है, तो स्पाइक पे निकल जाना बेहतर होगा। कहाँ निकल जाना बेहतर होगा? 970 पे, जो कि आपने करेक्ट आइडेंटिफाई किया है। प्रॉब्ली यू हैव ड्रॉन द ट्रेंड लाइन एंड दैट्स हाउ द टारगेट इज। वेरी गुड, गुड एनालिसिस, वेरी नाइस। सी ये एडवांटेज होता है एक अच्छे स्टूडेंट का। नीलकमल लिमिटेड, दैट इज द नेक्स्ट क्वेरी। सो अगेन नीलकमल लिमिटेड, तो देखो भैया ये क्या बनाते हैं? ये कुर्सियां बनाते हैं प्लास्टिक की। ठीक है, क्या एज है? क्या एज है इस धंधे में? कुछ नहीं है। ठीक है, एंड अननेसेसरी का दे गॉट अ राइड इन द मार्केट फॉर 3200, जिसमें से मोस्ट ऑफ द गेन्स दे केम आफ्टर कोविड। स्टॉक वेंट ऑलमोस्ट 250%। सो जो बड़ा खिलाड़ी, उसे पता है कि यार पब्लिक बेवकूफ जैसा बाय कर रही है, तो डंप करो। सो दे यूटिलाइज दीज अपॉर्चुनिटीज टू डंप। दैट इज व्हाई आई से दैट व्हेनेवर यू हैव अ वाइड रेंज कैंडल, सीधे निकल जाओ, क्योंकि ये वाइड रेंज कैंडल मेरे और आपके बाइंग से नहीं हुई है, ये प्रमोटर और उसके गैंग से हुई है। ठीक है, सो दिस स्टॉक इज डेड, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। टेक्निकल पुल बैक आया तो 2300 तक आ सकता है, नॉट मोर देन दैट। टाटा मोटर्स 620 टारगेट इंटैक्ट है। ठीक है, टाटा मोटर्स में किसी को टेक्निकल ट्रेड करना है तो कल मैंने बताया था कि इसको अभी रुक जाओ। अगेन इट्स अ वाइड रेंज कैंडल। ठीक है, और ये वापस एक बार ड्रॉप करेगा, सो इसे बॉटम आउट होने दो, फ्रेश ट्रेड वहां पे मिल सकता है। ब्रिटानिया समझ गए होंगे, ब्रिटानिया काफी लोगों की क्वेरी थी, तो सिप्ला के चार्ट को लेके ब्रिटानिया मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, वापस से ठीक है, नॉलेज सी, चलो इसी चार्ट को ले लेते हैं। सिप्ला, ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, व्हाट इज द कॉमन थिंग इफ यू नोटिस हियर? ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, करेक्ट। बट नाउ यू कैन से दैट ये तो टूट गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब ये सोचो क्यों टूट गया? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीवियस हाई नहीं है, इसलिए ये आराम से ये टूट गया। अंडरस्टैंडिंग? अब यही जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये मान लीजिए जस्ट इसके ऊपर होता, यहाँ पे होता, तो फिर वो सेफ बाइंग बन जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चार्ट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है बॉस, वो हम लोग उतना केयरफुली एसेस नहीं करते, लॉजिक नहीं लगाते। एक मकान के ऊपर दूसरा मकान सस्टेन कर जाएगा, ठीक है, बट इतना गैप दे के, वो भी इतनी एक पिलर पे बना दोगे 4 BHK, तो नहीं सस्टेन करेगा। थोड़ा भी हलचल हुआ तो बॉस गिर जाएगा। HDFC बैंक की बात करेंगे तो 1300 का स्टॉप लॉस है, 1400 से 1500 में एक्यूमुलेशन करने को बहुत बार पहले कहा था, अभी भी मौका है, बाय कर लो स्टॉप लॉस के साथ। पीडीलाइट, वेरी गुड क्वेरी, again coming from our student. Pidilite Industries. See, Pidilite Industries, Asian Paints, these are all good counters on our radar. Pidilite Industries में एक ट्रेड में आपको आउटराइट देता हूँ। सक्सेस रेशियो में कहूंगा 60-40 का होगा, निर्भर करेगा बाजार के ऊपर। ये अगर आपको एक ये ब्रेक करता है, या मान लीजिए यहाँ पे आता है 2250, 2200 समवेयर हियर, ठीक है, तो इसे एक बार आउटराइट बाय कर सकते हैं और आपका 2000 का स्टॉप लॉस होगा। यू कैन कीप 2000 एज अ स्टॉप लॉस। ओके, सो इन कैश में करना है, एफएनओ में नहीं। सो ये एक ट्रेड आउटराइट में दे रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट लाइकली टू थिंग्स कैन हैपन। नंबर वन, ईदर if big ticket buying is happening, which looks okay, which looks okay, not very great, then this can directly start to move higher. Okay, and if it falls down, then because you have a 200-day moving average and still इसका distribution अभी तक हुआ नहीं है, so it will rally once. So in both the cases, this deserves to be a buy, and you are looking at least say 2600, 2700 on the higher side. So ये एक ट्रेड बन रहा है पीडीलाइट में, और मैं हमेशा ऐसे ही काउंटर्स पे भरोसा रखता हूँ जो सही रहे। ठीक है, तो दिस इज वन गुड काउंटर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड for thousands of time, and 2250 already given in advance, and it has already moved almost 150 points, so ठीक है,
सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो पुराना जो व्यू है वही इंटैक्ट है। एंड वेरी नाइस। सीडीएसएल देखिए ये टूट चुका है, आपको याद होगा सीडीएसएल, आईईएक्स, आईआरसीटीसी, ठीक है, तीन स्टॉक, सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर, तीनों पे एक ही बात कही थी मैंने, और वो अब देखिए सीडीएसएल वापस नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर लिमिटेड है, नीचे आएगा वापस। आईआरसीटीसी चेक कर लेते हैं और आईईएक्स चेक कर लेते हैं। आईआरसीटीसी एक ड्रॉप हो चुका है, अगली बार में वापस नीचे, ठीक है। आईईएक्स देखो, जब भी चार्ट एनालिसिस करते हो तो जो सिमिलर एक्टिविटी है, लुक एट दिस आईईएक्स, ठीक है, तीनों चार्ट देखो सेम है, इसलिए तीनों पे मैंने मना किया था बाय मत करना। आईईएक्स कहाँ बोला था बाय करने को? यहाँ पे। आईआरसीटीसी उसी तरीके से एडवांस में लेवल में दे चुका हूं। आईओएल सीपी जो है इंडियन ऑयल सॉरी इंडियन ऑयल कह रहा हूँ, आईओएलसीपी केमिकल, आईओसी केमिकल, सी बेरिश काउंटर है, outright bearish. It is bearish since so many months, so many months. Okay. Now, see, this is a massively dead counter क्योंकि इसने अगस्त 2020 में ही अपना टॉप बना के ये तब से जो है मैसिवली गिर चुका है, गॉन केस। सी दिस इज व्हाट हैपेंस कि लोग जो है फिर से होल्ड करके फंस जाते हैं और मैसिव करेक्शन हो जाता है। सो डॉक्टर रेड्डीज एक बार मैं चेक करूंगा क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी था। दोस्तों जो कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आप लिखेंगे वो मैं डेफिनेटली उसे उठाऊंगा। सो आप एडवांस में जो है कमेंट सेक्शन पे भी आप लिख सकते हैं। सी डॉक्टर रेड्डीज अगेन बेरिश काउंटर है। ओके, फार्मा मैं आपको बता चुका हूं कि सन फार्मा एक बुलिश था। बाकी लॉन्ग टर्म में बायोकॉन है, बायोकॉन में भी अभी तक एंट्री मैंने नहीं करवाई है, इसीलिए नहीं करवाई बिकॉज ऑल दिस यू नो दे आर नॉट दैट ग्रेट। आप औरो फार्मा देखो, लुपिन देखो, सब में कितना मैसिवली मना किया है। सो डॉक्टर रेड्डीज जो है इनको लास्ट ईयर इफ आई रिमेम्बर ग्रुप में मेंबर्स होंगे तो इसमें मैं 2 राउंड ऑलरेडी प्ले करवा चुका हूँ। सिंपल लॉजिक ऑफ दैट सेम ब्रिटानिया वाला लॉजिक। तो एक बार हमने यहाँ प्ले किया था, एक बार यहाँ प्ले किया था। लुक एट दिस सुपर डुपर गुड वीकली बुलिश पिन बार, सुपर। सो हमने एक ट्रिप और 2 ट्रिप कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद से फार्मा से हम गायब हैं, ठीक है, पिछले 3 महीनों से। सो दिस इज हाउ यू शुड प्ले सेफ। थर्ड, यहाँ पे क्यों नहीं बाई किया? इसका रीजन है प्राइस एक्शन, ठीक है, इसका रीजन है प्राइस एक्शन। चलिए, couple of more queries and we can wind up. We are almost completing more than 1 hour of live streaming. uh, next query. See, there are so many messages. So टाटा कंज्यूमर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इस समय देखिए डेथ क्रॉस बनाने की उसमें है। हालांकि डेथ क्रॉस को मैं वैसे नहीं रीड करता जैसे यूट्यूबर्स करते हैं। सो टाटा कंज्यूमर देखिए एक ही चीज है दोस्त, अगर आपने बाई किया है ना तो 656 का स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। और ये अगर आपको एक अप मूव देता है 740 750 तो एक बार निकल जाना, ठीक है। ये एक एडवाइस इसमें इस वक्त में दे सकता हूँ। फिलहाल कोई बड़ी टाइम फ्रेम को लेके नहीं चलना है, फिलहाल छोटे छोटे मूव्स लेके चलना है कुछ दिनों तक, एटलीस्ट टिल 10th of March. Next I can see अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट इस वक्त हालत खराब है अंबुजा भाई की, पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। एंड अगेन यू सी व्हेन इट ब्रोक दैट 350 340 330 ऑल दीज वर रेड वार्निंग्स, सो इट्स गॉन। लुक एट दी स्पाइक इन वॉल्यूम, हालत खराब है बॉस, हालत खराब है, वेरी वेरी बैड लुकिंग। सीमेंट इस तरीके से, सीमेंट का टूटना बहुत बहुत हालत खराब है, ठीक है।
मंथली चार्ट्स पे मैं देख रहा हूँ कि 280 इसका हिस्टोरिकल वैसे काफी सालों तक इसका टॉप रहा था. ओके, so this 280 zone, so let it come at 280 zone, probably some technical trade can come. But as I said, you know, look for leading counters. और जैसा कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिटेल डेड काउंटर्स में फंस जाएगी एंड इंस्टीट्यूशंस न्यू काउंटर्स में प्रॉफिट करके भाग जाएंगे. So you see how smartly they rotate these markets. Excellent. Their PR machinery is much better than, you know, leftist PR machinery. Lind India, ठीक है, स्टॉक पे लास्ट टाइम एक ही एडवाइस मैंने दी थी, वो ये कि या तो आप ट्रेल कीजिए 2530 पे, या तो जैसी न्यू हाई बनता है प्रॉफिट बुक करो. सो आई वुड स्टिल से द सेम थिंग. इंस्टेड आई वुड से दैट यू नो एनी अपोव दैट कम्स, एक बार आप प्रॉफिट बुक कीजिए, एक बार आप प्रॉफिट बुक कीजिए. व्हाई? बिकॉज आई कैन क्लियरली सी सम हेजिटेशन sustaining about 2700. Look at this wide range candle pump. What is the high? The high is 2700. How many days it has sustained about 2700 level in the last 6 month? आप खुद देखो, पिछले 6 महीने सितंबर से लेके अभी ये फेब एंड तक 2700 के ऊपर कितने दिन? यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 1-2 दिन, यहाँ पे 1-2 दिन, और ये 2-4 दिन. यानी 2700 के ऊपर जो है इसे कंफर्ट नहीं है, और ये बात इस बंदे को यहीं पे पता थी. ठीक है. सो क्या हो रहा है? या तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या तो रीएक्यूमुलेशन होगा. रीएक्यूमुलेशन अगर होगा तो प्रमोटर गधा नहीं है कि वो ऊपर बाय करेगा. वो कहाँ बाय करेगा? वो यहाँ बाय करेगा. ठीक है. यहाँ आया था, किसी ने बाय किया, उसने तो नहीं किया है, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. यहाँ भी उसने नहीं किया है. अब अगली बार देखते हैं. ठीक है. चार्ट्स जो है ना, ये एक पहेली है. ट्राई टू रीड द फुटप्रिंट्स ऑफ 3 major type of traders: promoters, insiders, and Twitter traders. टाइटन इंडस्ट्रीज, ठीक है, टाइटन इंडस्ट्रीज फिलहाल आइडेंटिकल डबल टॉप है, तो एक बार इसको पियर्स कर देगा. प्रॉफिट बुक एक बार करना. इस स्टॉक ने अच्छा एक मैसेज दिया है फ्यूचर के हिसाब से. फ्यूचर के हिसाब से मैसेज ये है दैट आई थिंक दिस स्टॉक नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर देयर इज अ करेक्शन ना, ठीक है, आई विल बी अ ब्लाइंड बायर इन दिस स्टॉक. ओके. सो अब नेक्स्ट टाइम के लिए ये स्टॉक बहुत ही एक अच्छा एक लीडिंग काउंटर बन के निकलेगा. सो मैं समझता हूँ कि फिलहाल यहाँ पे एक बार आपको निकल जाना चाहिए. ठीक है. विद गोल्ड प्राइसेस एट सच अ हाई लेवल, तनिष्क एंड ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक एक बार यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. फिर उसके बाद वापस देखेंगे शादियों का सीजन जब आएगा, कुछ शादी वादी अगर हो रही है तो फिर ठीक है, वहां पे देखेंगे. और उसके अलावा नहीं, प्रॉफिट बुक एंड वेट फॉर करेक्शन. इफ एवरीथिंग लुक्स गुड दैट टाइम, देन ओनली वी विल बाय. गुड चार्ट. लास्ट क्वेरी. हिंडाल्को में अभी क्या ट्रेड है? हिंडाल्को में अभी कोई ट्रेड नहीं है. हिंडाल्को में तो पहले ही ट्रेड था. टाइटन हो चुका है. ओएनजीसी, देखिए मेरे सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है. सो नाउ लेट अस वाइंड अप. वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes. सो ओएनजीसी कल जैसा एक्सप्लेन किया था, स्टॉप लॉस लगाओ, 210 का टारगेट है. दैट्स इट. निफ्टी 20, हाँ निफ्टी 20 थोड़ा खरीद के रखो, कोई दिक्कत नहीं. बॉश लिमिटेड इस समय आई थिंक बेरिश काउंटर है. जर्मन है बॉस, भाग जाओ इन सब कंपनियों से, निकल जाओ इन सब कंपनियों से. ठीक है. दैट्स द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट. बाकी तो चार्ट्स पे भी बेरिश ही है. सीमेंस एंड बॉश एंड ऑल दीज थिंग्स, निकल जाओ. ठीक है. वेल सेड. एक्चुअली में ये बात भी सही है. आज मूड देखो, मूड अच्छा था आज. काफी सारी ट्रेडिंग की चीजें यहीं पे मैंने एक हिंट दे दिया. ओके. टाटा कॉफी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पिक है, कोई दिक्कत नहीं है. टाटा कॉफी जो है बाय कर सकते हैं कैश में. 150 रुपए का स्टॉप लॉस होगा. ठीक है.
और आई थिंक एक आखिरी टाटा स्टील हो चुका है. टाटा स्टील आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. एंड वन क्वेरी कमिंग, बहुत बड़ा क्वेरी है. क्या क्वेरी है भाई? ये लिटरेचर लिख दिया आपने मुगलों पे. फेडरल मुगल कैन क्रॉस 300 रुपया, ब्ला 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 ब्ला. ओके, सो एक बार लेट अस चेक व्हाट इज द symbol for this. FMG. Okay, Fed Mughal. I can't even pronounce. ओके, सो स्टॉक देखो रेजिस्टेंस पे निकल जाओ. ठीक है, स्टॉक जो है परपेचुअल डाउन ट्रेंड में है. सो निकल जाओ. ई क्लार्क्स. अब फ्रेश क्वेरीज मत पूछिए, अब वाइंड अप करना है. सेवा समाप्त, समय हो चुका है. ई क्लार्क्स, सी ई क्लार्क्स जैसी कंपनी, केपीओज एंड ऑल दीज गाइस, यार इतना अच्छा मौका यहाँ पे था 3,000 के ऊपर. देखो इस स्टॉक में कैसे आपको समझ में आता है कि गड़बड़ हो रही है. ठीक है, स्पंदन समझते हो क्या होता है? स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन. ठीक है, तो लुक एट दीज स्विंग्स. ठीक है, यहीं पे यहीं पे एक संकेत था कि इसमें ना अननेचुरल हलचल हो रही है. इसका मतलब क्या है? जब चार्ट्स में देखो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, व्हेन व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर होल्डिंग द प्राइस, व्हेन दे आर इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक, वो चार्ट्स को जो है स्मूथ रखते हैं. द अलाइनमेंट ऑफ द कैंडल्स, द स्टैकिंग ऑफ द कैंडल्स, इट इज वेरी रिजिड, इट इज वेरी एस्टेब्लिश्ड फॉर्म. ओके, और जहां पे इंस्टीट्यूशंस भागने लगते हैं तो यहाँ पे ऐसे लॉफ्टी स्विंग्स होते हैं. ठीक है, बड़े बड़े स्विंग्स ऐसे. ये एक निशानी होती है कि पब्लिक, बड़े लोग भाग रहे हैं स्टॉक से. सो ऐसे जब भी कोई चार्ट्स मिले टेक्निकल रेजिस्टेंस जैसे ये था, तो यहाँ कहीं आपको निकल जाना चाहिए. और स्पेशली जब ये आखिरी जो मूव है, लुक एट दिस पंप, एक्सपेंशन ऑफ रेंज विद अ गैप अप, थ्रो ओवर एंड देन ड्रॉप. बस ये साइन है. जिसने भी जो जुड़े हैं मेरे से, उनको ये सब बातें पता है, क्योंकि थाउजेंड ऑफ टाइम्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज नुआंसेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. चलिए दोस्तों, वाइंड अप करेंगे. बहुत लंबा सेशन हो चुका है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, दैट इज द बैकअप platform for us. And last but not the least, anybody who is still waiting to join, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं. नेक्स्ट वीकेंड को ट्रेनिंग जो है मुझे पोस्टपोन करना पड़ा बिकॉज सम अर्जेंट वर्क हैज कम फॉर दिस वीकेंड. सो रेयरली ऐसा होता है, मे बी साल में एक बार ऐसा हुआ तो हुआ. सो March 12th and 13th यू कैन सेव द डेट. ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच and I wish you a very profitable day tomorrow. Thank you so much. Take care. Good night. Jai Mata Di.